الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنتم بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے انتہائی لائق صدیق کرام نواب کرام استاذ محترم صاحبان جملہ سامعین بیان تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس سال میں 12 ربیع الاول کے سلسلہ میں چوتھی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی منتظرین کی اس حاضری کو اس کاغذ کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے سریا بچار کریں۔ آج جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ 2-3 عنوانات کے تحت ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عقیدت اپنی محبت میں ایک جملہ بولتے ہیں عید میلاد النبی۔ صاحب کی توجہ چاہوں گا، ہم یہاں پر 4 الفاظ بولتے ہیں: عید، میلاد، تیسرا لفظ ہے نبی۔ 2 لفظ پہلے جو ان پہ گفتگو کروں گا کیونکہ اس پر بڑی شد و مد ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو میلاد منانے کے حوالے سے اسے عید کہنے پہ بھی بڑی شد و مد کی جاتی ہے اور لفظ میلاد پر بھی بڑی گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے پرسوں میں کلپ سن رہا تھا لاہور کے غیر مقلد کا، اس کا نام ہے عبدالرزاق ساجد۔ اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا عید کے حوالے سے، تو تقاضا کر رہا تھا
کہ اگر یہ عید ہے اس میں خطبہ ثابت کرو، اس میں نماز ثابت کرو، اس کی اذان ثابت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے پتہ نہیں اس کو علامہ کا یا مولانا کا خطاب دیا کس نے، جس کم علم کو کم سب کوئی پتہ ہی نہیں کہ عید کے لیے اذان ہوتی ہے، عید کے لیے اذان نہیں ہے، نہ اقامت ہے۔ پھر کوئی بندہ یہ تقاضا کرے کہ جس عمل کو آپ عید کہتے ہیں اس کے لیے اذان، اس کے لیے اقامت جو ثابت کریں، اس کی جہالت کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا بڑا مفتی ہے، کتنا بڑا محدث ہے۔ اور دوسری بات، عید عبادت کے لفظ پر اطلاق نہیں کرتی، جس عمل کو عید بولا جائے اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس میں نماز ہو، اس میں خطبہ ہو۔ ہم جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں خطبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ عبادت اس دن کے ساتھ منسوب ہے، وگرنہ لفظ عید صرف عید الاضحیٰ کے لیے ہی نہیں، عید الفطر کے لیے ہی نہیں استعمال ہوا۔ اہل عرب کے ہاں اور بھی معاملات کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا دلیل بات نہیں کروں گا۔ عربی نقطہ ہے، عربی ڈکشنری جس کا نام ہے المورد البسیط، بندہ نچیز کے پاس موجود ہے، اس میں کئی مواقعوں کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں عید کا معنی مسرت، خوشی کا موقع، یہ عید کا معنی المورد البسیط میں ہے۔ ایک لغت، دوسری لغت، عربی کی بنیادی ابتدائی لغات میں ایک لغت ہے جس کا نام ہے المنجد۔ المنجد میں عید سے مراد لوٹ کر آنے والی، چونکہ کوئی لمحہ ایسا ہے جو سال کے بعد پلٹ کر آتا ہے اسے عید کہتے ہیں۔ المورد البسیط میں عید کا معنی پلٹ کر آنے والی، لوٹ کر آنے والی، اور اس کے ساتھ خوشی، مسرت، اسے عید کہتے ہیں۔ اور کئی عیدیں لکھنے کے بعد ایک عید اور لکھی ہے، بلکہ اس نے عید میلاد النبی کا لفظ بھی لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا موقع، اور اس نے عید کے ساتھ ایک جملہ لکھا ہے، عید یوم شخص
कि किसी आदमी की पैदाइश के दिन को ईद कहते हैं। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जब कोई कहे कि अल-मुर्दुल मसीह में दिखाओ, तो नुस्खा मेरे पास मौजूद है, मैं दिखाने के का पाबंद हूं। जिसे हम आज की जबान में सालगिरह कहते हैं, बर्थडे कहते हैं, उसको ईद यौम शख्स कहते हैं। किसी भी शख्स के पैदा होने का दिन उसे ईद कहते हैं। अब आम बंदा उसकी विलादत को अहले अरब सालगिरह के दिन को ईद कहे, और अगर हम अहले अरब की तकलीद करते हुए मिलादे मुस्तफा के दिन को ईद कहते, तो फिर ईद की शान में, ईद की अजमत में फर्क नहीं पड़ता। चले, ये तो दो शायद इसे कोई आम तब समझे, हालांकि ये आम नहीं है। एक बहुत बड़ी किताब है, कई जिल्दों में, और जब कोई पीएचडी स्कॉलर, एमफिल स्कॉलर अपना थीसिस कंप्लीट करता है ना, उसमें अल्फाज के मानी लिखने में अगर वो लिसानुल अरब, जिसे इब्ने मंसूर अफरीदी ने रकम दिया है, अगर लिसानुल अरब का हवाला देकर माना दर्ज करता है, तो उससे थीसिस को रिजेक्ट नहीं किया जाता कि इसने माना बड़ी मुस्तनद किताब से लिया। तो अल्लामा इब्ने मंसूर अफरीदी ईद के दो माने लिखते हैं, हालांकि और भी बहुत लिखे हैं। उन्होंने भी ईद का माना लौट कर आने वाली और मुसद्दक और शाबानी खुशी के माने में ईद को लिया। अब वो जो मौलाना कहते हैं कि अगर तुम मिलादुन नबी को ईद कहते हो, इसकी नमाज का टाइम क्या है, इसका खुतबा कब होगा, मैं उसे दावत फिक्र देता हूं कि मौलाना जरा तवज्जो करें, ईद के किसी भी इज्तिमा को इब्ने मंसूर कहते हैं, ईद कहते हैं। हम मिलादुन नबी के जुलूस में हजारों की तादाद में जमा होते हैं, जलसा मिलाद नबी में हम सैकड़ों हजारों की तादाद में जमा होते हैं। इब्ने मंसूर कहते हैं किसी भी इज्तिमा को ईद कहते हैं। जब किसी भी इज्तिमा को ईद कहते हैं तो जिसमें जिक्र मुस्तफा हो, मिलाद मुस्तफा का तज़किरा हो, आप उसमें खुद भी ईद मिलाद नबी कहते हैं। तो फिर ईद में खुतबा या जमात या नमाज की शराइत नहीं है कि फिर ईद बोला जाएगा। अल्लाह अकबर। अब आइए लफ्ज़ मिलाद पर। लफ्ज़ मिलाद अरबी में हर लफ्ज़ का एक मादा इस्तिक़ाक़ होता है। कोई लफ्ज़ मस्दर होता है, कोई लफ्ज़ मुश्तक़ होता है, कोई लफ्ज़ जामद होता है। तो मिलाद का लफ्ज़ जो है ये मस्दर है, सॉरी ये मुश्तक़ है लफ्ज़ फरदुल से, और फरदुल का लफ्ज़ कुरान पाक में 93 बार आया है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए हम जिस लफ्ज़ को मिलाद इस्तेमाल करते हैं, ये मिलाद ज्यादा मुस्तअमल उर्दू नुक्तादानों के यहाँ है। आले अरब ने मिलाद भी इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ मौलूद भी इस्तेमाल किया है। और मौलूद का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है, और हदीस में तो न जाने कितनी दफा लफ्ज़ मिलाद और मौलूद इस्तेमाल हुआ है। आइए एक दलील सुने, पहले मिलाद का माना सुन लें,
ये भी मैं इब्ने मंजूर अफरीदी के लिसानुल अरब के हवाले से और अल-मुंजद के हवाले से, अल-मुल्कुल वसीम के हवाले से, देवबंद मसलन की उर्दू डिक्शनरी है फिरोजुल लुगात, उसके हवाले से क्या माना है? वलादुल का माना पैदाइश और मीलाद का माना है किसी के पैदा होने का वक्त, किसी के पैदा होने के वक्त को मीलाद कहते हैं। तो मीलाद का लफ्ज हदीस में हमसे कहा जाता है जी मिलाद हदीस में दिखाए, तो सुनने दीजिए किताब का नाम। अब सब झूठी गल तो करनी नहीं हमने, कि मेरे बुजुर्ग सलामत में दुआएं देते हैं, मैं मसीह से दुआ लूंगा। मिलाद का लफ्ज जामे तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी सियासत्ता की 30 नंबर की किताब, उसके किताबुल मनाकिब में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाकिब लिखे, यहाँ पे मेरे आका की विलादत का जिक्र आया, उस बाब का नाम इमाम तिरमिज़ी ने लिखा बाब मा जाअ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो बाब आ गया जिसमें मिलादुन नबी का जिक्र है, मिलादुन नबी के जिक्र का बाब, और उसमें एक हदीस उन्होंने लिखी है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने बनु यामन के एक शख्स से, वो भी आमुल फील में पैदा हुआ, आप उम्र में बड़े हैं या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, तो उन्होंने फरमाया अना अक़दिमु, उन्होंने कहा कि अगरचे मैं पहले पैदा हुआ हूं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़े हैं, किसमें? मीलाद में, पैदाइश है, मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम मुझसे बड़े हैं। तो वहां उस हदीस में इमाम बुखारी ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जो उनसे पूछा, तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत को मिलाद का लफ्ज के साथ याद किया। तो हदीस में मिलाद मुस्तफा, मिलाद का लफ्ज मौजूद है, लफ्ज मिलाद दिखाना है। तबरानी मोजमल कबीर, अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुज़क्किरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर मिलादुहुमा इंदी, आप फरमाती हैं मेरे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक के मिलाद का जिक्र हुआ। अब उन्होंने पैदाइश मुस्तफा को भी मिलाद का नाम दिया और पैदाइश अबू बकर सिद्दीक को मिलाद का नाम दिया। तो गोया हदीस से भी लफ्ज मिलाद साबित हो गया। इसलिए हम उनके उस वक्त को कि जिस वक्त में इस जहां पर रब ने वो नफ्स व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, वो कुरान का जुमला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, जिस मौकों के लिए रब ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई, तो उस वक्त को, उस मौके को हम मिलाद का नाम देते हैं। अब ये मिलाद हुआ कब? ये भी हम एतराज है कि तुम 12 को मिलाद बनाते हो, तब 12 को तो मिलाद है ही नहीं। याद रखें, तारीख मिलाद में कई मुहद्दिसीन ने, कई मौरखीन ने
अपनी अपनी राय तय की है, मुख्तलिफ तारीखें बयान की हैं, लेकिन जमहूर ने जिस आयत पर इत्तेफाक, जिस तारीख पर इत्तेफाक किया है, वो तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। सीरत हलबिया, इमाम हलबी ने लिखा कि शामी लिखते हैं कि बित्तहकीक नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत रबीउल अव्वल की 12 तारीख को है। ये सीरत हलबिया, ये जरा दूर के दौर की बात है। मैं इसी तरह नीचे से ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, फिर आखिर पे 2 मसलों के बाद आगे बात खत्म करूंगा। अल्लामा इब्न जौज़ी बहुत बड़ा मुहद्दिस है। पहले ये वलियों को नहीं मानता था, मेरे गौस ने निगाह की, फिर मेरे गौस का नौकर भी बन गया, वलियों का नौकर भी बन गया। उनकी किताब बहुत मशहूर है, तलबीस इबलीस। उसको दूसरे ग्रुप वाले बड़ा पेश करते हैं कि इब्न जौज़ी ने ये लिखा, इब्न जौज़ी ने ये भी लिखा, जो मैं बताने लगा। किताब का नाम है वफा, बंदे के पास मौजूद है तर्जुमा शुदा। किताबुल वफा के अंदर अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। दूसरा वाला, अब तीसरा वाला है। सीरत की किताब सीरत इब्न हिशाम, इमाम बिन इस्हाक के आए हैं। सीरत इब्न हिशाम में इब्न हिशाम लिखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल है। बड़ी मोहतर किताब है सीरत इब्न हिशाम। और जो सीरत की सबसे पहली किताब इमाम इब्न इस्हाक ने लिखी, सीरत इब्न इस्हाक, इमाम इब्न इस्हाक लिखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल। तो ये तो सीरत की किताबें थी। हदीस की 2 किताबें भी सुनते जाए। और आपने हदीस की किताब का नाम सुना होगा जिसका मुसन्नफ है इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी सुन्नत कुबरा मशहूर है, और उनकी किताब है सीरत मुस्तफा अलैहिस्सलाम की, जिसका नाम है दलाइलुन नबुव्वा। उसकी जिल्द नंबर 1 के अंदर इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रबीउल अव्वल की 12 रातें गुजरी तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की विलादत पास आ गई। चूंकि रात जा रही थी और दिन आ रहा था, तो फिर पहले रात आती है शरीयत में इस्लाम की रूह से, फिर दिन आता है। तो 12वीं रात का गुजरने के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई कि 12 रबीउल अव्वल आपकी विलादत है। दूसरी किताब, ये भी उसी नाम की किताब है, ये भी मेरे पास मौजूद है। इमाम बैहक़ी की दलाइलुन नबुव्वा को देखना चाहे तो अभी मेरे पास साथ में मौजूद है, मैं अभी दिखा सकता हूँ। दलाइलुन नबुव्वा अबू नुऐम अस्सहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह 4वीं सदी के मुहद्दिस हैं। उन्होंने मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की विलादत लिखी है कि 12 रबीउल अव्वल से। चलो, ये तो बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे। अल्लाह अकबर। तारीख तबरी, तारीख की किताब की बात नहीं कर रहे। अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिल्द नंबर 2
اس میں لکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے. اللہ اکبر. چلے یار یہ تو سارے میلاد مناتے تھے. میرے آقا کے ولادت کے دن آپ کے گھر پہ محدثین فقہا علماء جمع ہوتے تھے, میلاد پڑھا جاتا تھا, شیرینی تقسیم کی جاتی تھی, بڑی بڑی کتابوں میں بات لکھی ہے. چلے وہ تو یہ میلاد کرنے والے تھے نا, اور وہ برِ صغیر میں چلتے ہیں. برِ صغیر میں غیر مقلدین کا ایک امام گزرا ہے جس کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بخاری. اس کی کتاب ہے, یہ بھی میرے پاس موجود ہے, جس کا نام ہے الشمامۃ الانبیاء. نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے نواب صدیق حسن خان بخاری نے لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 7 پر نواب صدیق حسن خان بخاری نے جو محقق اس کی تحقیق میں جو فائنل تاریخ ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اور اس نے تو لکھا ہے جو میلاد کو غیر شرعی کام کا میلاد منانے کے کام کا انکار کرتا ہے اس کے کفر میں شک نہیں ہے. نواب صدیق حسن خان بخاری نے میلاد منانے کو ایمان کا حصہ قرار دیا. اور اسی شمامۃ الانبیاء کا حوالہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے. اگرچہ اور طریقے بھی لکھی ہیں, لیکن جو فائنل متحقق انہوں نے دلیل لکھی ہے وہ 12 ربیع الاول کی لکھی ہے. اور ہم کو یہ فتویٰ لگتا ہے نا کہ وہ تاریخ تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے. ہم کہتے ہیں ولادت کی تاریخ ہے, وفات کی نہیں ہے. بلکہ ایک مولوی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اجماع امت ہے, علماء کا متحقق جو ہے وہ ایک محققانہ فیصلہ ہے کہ 12 ربیع آپ کی وفات ہے, ولادت میں شک ہے. انہی کے مولوی نے اشرف علی تھانوی نے نشر الدین میں لکھا ہے. کون کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال, ان کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے. آپ نے خطبہ حج جمعے والے دن دیا تھا. اس اعتبار سے پیر کے دن آپ کا وصال ہے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو. پیر کا دن 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں. میں آپ کو فکر دیتا ہوں, 3 چاند بیچ میں آئے. سرکار نے 10 ہجری 9 ذی الحج کو جمعے کے دن خطبہ حجۃ الوداع دیا. پھر ذی الحج کے بعد محرم کا چاند, محرم کے بعد سفر کا چاند, سفر کے بعد ربیع الاول کا چاند. لا کے کام لے کے بیٹھ جائے. پورا چیلنج ہے, پورا چیلنج. 3 چاند آتے ہیں بیچ میں, تینوں 29 سے نکال لے اور 12 ربیع الاول کا دن پیر کے دن بنا لے, ہم مان جائیں. تو میرے آقا نے فرمایا, ان سے پوچھا کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام رسول یا رسول اللہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ میں سے پیدا ہوں, اس دن مجھ پہ وحی کا نزول ہوا, اور اسی دن میں مدینہ میں آیا اور اسی دن میں اٹھایا تھا. آپ کا مثال متفق ہے کہ پیر کا دن تھا 9 ذی الحج جمعہ کا دن. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا. پھر وہاں سے 3 مہینے 29 سے پورے کریں. پیر 12 کو نہیں آئے. 3 مہینے 30 کے بنا لیں, پیر 12 کو نہیں آئے گا. 2 مہینے 29 کے بنائے,
एक 30 का बनाए, पीर का दिन 12 को नहीं आएगा। एक 30 का बना ले, 2 30 के, 2 30 के बना ले, एक 19 का बना ले। हर एक बात से चारों तरीके से करके देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह पीर वाला दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं आएगा तो फिर दावा झूठा हो जाएगा कि 12 रबीउल अव्वल मेरे मुस्तफा के विसाल का दिन नहीं है। कोई 2 बनता है या 9 बनता है, बात के नजदीक 16 बनता है, क्योंकि इन दिनों में पीर आता है। और पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल 9 12 रबीउल 11 हिजरी को किसी एतबार से लिया था। तो फिर हमने इतने मुहद्दिसीन को पढ़ा, इतने मुअर्रिखीन को पढ़ा, इतने सीरत नगारों को पढ़ा, अपनों को भी पढ़ा, बेगानों को भी पढ़ा, तो हमें तो पता चल गया कि मेरे मुस्तफा का मिलाद 12 को है। हम तभी 12 को मनाते हैं। फिर भी हम कहते हैं चलो या तुम 9 को दिखा दो, तो भी 9 को झटाने के बाद निकलो। हम भी नहीं करते हैं, हम भी तुम्हारे हाथ में हाथ देकर मुस्तफा ने रहमत का नारा लगाया, मनाओ तो सही। फिर आला हज़रत पे एतराज होता है, बिल्कुल आखिरी बात, आला हज़रत पे एतराज होता है कि ये आला हज़रत ने लिखा है कि आपकी विलादत 8 रबीउल अव्वल को है। हालांकि सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में 7 तारीखें लिखी है, 7 कि फलां ने ये कहा, फलां के नजदीक ये है, फलां के नजदीक ये है। साजी बैठे तहकीक के मैदान में है, एक तालिब इल्म मैं भी तहकीक का हूँ। ये मैंने भी अपनी मकाला जात लिखे हैं। मैंने एमफिल का मकाला लिखा, उसमें लफ्ज़ कमर की बात लिखी है, चूंकि अपने मुर्शिद पे लिखा था, उनका नाम कमरुद्दीन है, तो लफ्ज़ कमर के लिए मैंने कई आले लुगत के तशरीहात लिखकर फिर उसका जो फैनल था अपनी तहकीक में, जो फैनल था वो मैंने लिखा। फिर जनाब अली पाक के बारे में, आपके औलाद के बारे में, आपकी बीवियों के बारे में तहकीक हुई, उसको भी मुताद लिखने के बाद फैनल लिखा। सैयदी आला हज़रत बहुत बड़े मुहक्किक हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए। उन्होंने 7 तारीखें लिखी है। 7 लिखने के बाद उसी जिल्द में मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल ही है। बताता है कि मेरे इमाम की तहकीक का जो फेलर सीजन है वो 12 रबीउल अव्वल है। और आपने बाकी 7 जो लिखी है वो मुख्तलिफ हवालों से लिखी है, फलां ने कहा, मगर अहमद रज़ा की तहकीक ये है कि मुस्तफा का मिलाद 12 रबीउल अव्वल को। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरे आका की आने के दिन को सारी खुशियों से बड़ी खुशी मनाते हैं। एक बाबा जी सादा थे, बात बड़ी पते की कर गई, तो कहने लगे कि बंदे को खुशी मिलती है या गम मिलता है, तो बेटा याद रखना इस कायनात में आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से बड़ी खुशी कोई नहीं, और नवासे रसूल हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के गम से बड़ा गम कोई, हम दोनों मनाते हैं। अहले सुन्नत तो मैं मुबारक हो, खुशियों की जान सबसे बड़ी खुशी मिलाद मुस्तफा भी तुम मनाते हो, और मौला हुसैन के हम जो सदियों तक मुहित नहीं कयामत तक मुहित है, उस गम को भी तुम याद रखते हो। तुम्हें अल्लाह ने हुसैनियों में भी रखा है, सिद्दीकियों में भी रखा है, और मुस्तफा के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी